Welcome back to Remote Explorations everyone. It's me Sinjan again and as promised हमारे कॉलेज का entrance examination IMA entrance examination is on 20th June which is tomorrow, and for people who don't know about IMA, it's one of the best colleges to study mathematics and computer science together as a degree, क्योंकि वहाँ पे BSc Honors in Mathematics and Computing की डिग्री मिलती है. So it's a very good opportunity to like get into this institution, considering the fact that you couldn't qualify for ISI or CMI. उसके बाद this is the best one to study mathematics and have a career in mathematics. So yeah, its entrance examination is tomorrow. You can actually go into the official site iomaodisha.ac.in to learn more about this institution. And as promised, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर 2024-2025 सेशन का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस आई हैव ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ यू. सो विल क्विकली गो थ्रू इट. इजी सा पेपर था, easy to moderate paper actually, little calculative, थोड़े questions थे which were bit of calculation related. So paper pattern 50 questions each of 2 marks, कोई negative marking नहीं है, objective based paper है. So 50 to 100 marks का paper है, 2 hours का time मिलता है solve करने के लिए. So yeah, इसका question paper is available in the previous year question paper section in the official website, but मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है and I will be uploading this link to in the comment section, so you can actually like download it itself from there or see it from there. बहुत सारे साल के हैं. If you want to revise you can actually. क्वेश्चन के टाइप्स पिछले 2-3 साल से सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत किसी जैसे पिछले ईयर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स से ज़्यादा देखा गया था, बट या इट्स अ रूटीन ट्रेडिशन. सारे चैप्टर्स को सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना इज़ द मेन की. Okay, so without any further ado, let's get started. So first question is, if R is a relation defined on a set A is equals to ABC, then relation R is equals to phi is what type of relation it is, ये हमें बोलना है. So A is equals to ABC, R is equals to phi is what type of relation. So you all are familiar with types of relations. Reflexivity is if x is an element of A, then x comma x has to be an element of R, then only it is a reflexive relation. Symmetry, if x comma y is an element of A, then y comma x has to be a element in R, then it's symmetric. And for transitivity, if A, B, B, C and AC or CA anyways. So you all know it. So for reflexivity, since it's phi, so A B C में से कुछ भी नहीं है, so it's basically not reflexive. Symmetric and transitive, you all have heard the term vacuously true. So अगर अच्छे से देखोगे, so those terms the relations are satisfying it. So vacuously true relations हैं. So yeah, I hope it's clear. Next question, if f of x equals to max of x comma 1 by x. Questions काफ़ी अच्छे सवाल थे, like not too tough, easy to moderate, calculative. ये full marks type paper है. If you want you can actually achieve full marks on it. So my question number 2 is, f of x is equals to max of x comma 1 by x for x greater than 0, where max of a comma b denotes the greater of the two real numbers a and b, then for k is an element of 0 to 1, the value of f of k into f of 1 by k is. Similar thing now, if my k is an element of 0 to 1, कोई भी एक नंबर लेके देख सकता है. I took half, so k is basically half, then my 1 by k is 2. So for k belonging from 0 to 1, so my 1 by k is greater than k. So basically दोनों में से मैक्स 1 बाई एक्स होगा, सिमिलरली दोनों में से मैक्स 1 बाई एक्स होगा. सो 1 बाई के एंड 1 बाई के दोनों में से वी नीड टू नो द प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई के, सॉरी I mean f of k into f of 1 by k. So basically it's 1 by k square, which is option C. Easy question. I will be going through over quickly क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. Easy सा पेपर है. You all need to prepare who are giving IMS exam for tomorrow. So next is your the fundamental period of f of x equals sin to the power 4x plus cos to the power 4x. सो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, फंडामेंटल पीरियड निकालना है. डायरेक्टली विजिबल हो सकता है पाई बाई 2, अगर तुम लोग करके देखना चाहते हो तो यू कैन गो बाय दिस प्रोसेस. सो मैं इसको क्या करता हूँ, एक आइडेंटिटी के रिलेशन में दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का टर्म
मैं क्योंकि दैट इज़ वन उसका टर्म में मैं एक्सप्रेस कर दूंगा. सो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. अब इसका वैल्यू हम लोग को पता है. साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज बेसिकली योर 1/4. आई विल बी जस्ट टेकिंग द लेजर. या सो इसका वैल्यू वी नो इट्स 1/4 साइन स्क्वायर 2x. अभी उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, यू जस्ट पुट इट इन एंड इस पर हम लोग चेक करके देख सकते हैं हाउ द थिंग्स वर्क. कूल. I think it's fair enough. Number 4, if y is a function of x defined by 3 to the power of x plus y equals 3 to the power x plus 3 to the power y, then the domain of y of x is. Okay, nice question. So इसको मैं क्या करता हूँ, इसका डोमेन निकालना है हमें बेसिकली हमें इसका डोमेन निकालना है. कूल इनफ. सो व्हाट डू आई डू, आई ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इन ईजी फॉर्मेट. तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर वाई. पूरे चीज़ को इधर लेके जाऊँगा, उधर में न्यूमरेटर में नहीं, LHS और RHS में 1 रहेगा. सो बेसिकली अभी मैं इसको डिवाइड करूँ तो इससे ये कटेगा सेपरेटली व्हेन आई विल बी डिवाइडिंग. तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच रहेगा, 1/3 टू द पावर एक्स प्लस 1/3 टू द पावर वाई इक्वल्स 1. नाउ इफ यू चेक द डोमेन, इसका जो डोमेन आएगा वो 0 टू इन्फिनिटी आएगा एंड दिस इज एन ओपन ब्रैकेट. ओके, सो बेसिकली इसका डोमेन क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट ओपन. दिस इज डोमेन. कूल. नेक्स्ट, let f and g be the functions defined by f of x equals x by x plus 1 and g of x equals x by 1 minus x, then fog inverse of x's. So basically इस क्वेश्चन में एक फैलेसी, इजी सा क्वेश्चन है. यू नीड टू टेक आउट फॉग ऑफ एक्स विच इज बेसिकली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स का फंक्शन पुट कर देना है. तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक फंक्शन आएगा विच इज एक्स. एंड नाउ वन थिंग विच इज कि यहाँ से हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, फॉग इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकते हैं कि 1/x होगा क्योंकि फॉग ऑफ एक्स इज एक्स. बट नो, ये यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है. आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट के इन्वर्स लोगे तो दैट ऑल्सो रिमेंस एन आइडेंटिटी एलिमेंट. सो बेसिकली इसका इन्वर्स जो होगा वो एक्स ही होगा विच इज ऑप्शन बी. कूल. नाउ एफ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. मैं क्वेश्चन पेपर का लिंक डाल दूंगा एंड तुम लोग वहीं से देख सकते हो. मैं वैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ. If f of x plus 2 equals 1/2 of f of x plus 1 plus 4 by f of x, then we need to find basically the limit extends to infinity f of x. Now, a very common logic of recurrence. Now, f of x plus 1 and f of x plus 2 are basically recurrence functions or recurrence relations. Now, we all know by the rules of normal convergence और simple limit का ही हम लोग अगर प्रॉपर्टी देखते हैं. सो इन तीनों का जो लिमिट होगा, एनी टेंडिंग टू, तीनों का लिमिट विल बी कन्वर्जिंग एट द सेम प्लेस सिंस दे आर recurrent. Cool. Okay, so by rules of convergence they all have the same limit, they converge. अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक टर्म के आगे लिमिट लिख देता हूँ, फिर एक एक को एल पकड़ के सिंपल एल सॉल्व करता हूँ. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करके रखा है, सो जस्ट चेक इट आउट and you can comment obviously, no doubt about that. Question number 8, if the graph of the function y is equals to f of x is symmetric about the line x equals 2, then excuse me. So अभी अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो मेरे पास क्या आता है कि हम लोग को पता है जब भी कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर एंड के आउट में सिमेट्रिक होगा, सो दैट वुड बी बेसिकली एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स को सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे x is equals to a जो होगा that will be the line. So basically f of 2 plus x is equals to f of 2 minus x is the only thing ऑप्शन में जो है, जो इस फॉर्मेट में दिया गया है. So basically x equals to 2 को सेटिस्फाई करते हैं. Cool. So this is number 9. F of x equals 27x cube plus 1 by x cube and alpha beta the roots of 3x plus 1 by x equals to, then कुछ f of alpha f of beta के बारे में बताना है हमें. सो इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा. अभी इसको देख के हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिमिलर वन थिंग, क्यूब इट. बेसिकली डायरेक्टली क्यूब करो क्योंकि हम लोग को दिख ही रहा है कि 3 का क्यूब होता है 27 एंड यहाँ पे x का क्यूब होता है x क्यूब ऑब्वियसली.
सो मेरे पास क्या आ गया, मैंने इसको क्यूब कर दिया, अल्टीमेटली मेरे पास ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कमिंग आउट टू बी -10 एंड रूट्स इसका तो अल्फा बीटा है, तो ऑब्वियसली अभी इसको क्यूब करूंगा तो मेरे इनिशियल रूट्स तो सेम ही रहने वाले, दैट आई एम श्योर कि तुम सबको पता ही है इनिशियल रूट्स हमारे सेम ही रहेंगे। सो देन नथिंग एल्स, सिंपल इसका वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली क्वेश्चन में जो चीज़ नहीं बोला गया, जो चीज़ हमें पता है और प्रोबेबली इसको यूज़ करेंगे ये आइडिया का, तो क्वेश्चन बहुत इजीली निपट जाएगा। सो वो है बेसिकली कि इसका वैल्यू निकलना है सिंपल बातों में। कूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 is 5 f of x plus 3 f of 1 by x is given out to be x plus 2 and y is given to be x f of x. Then we need to find out dy by dx at x equals to 1. dy by dx at x equals to 1. Okay. y क्या है मेरे पास, x f of x. So basically y dash मतलब dy by dx क्या है, f of x plus x f dash of x. So now y dash at x equals 1 क्या है, f of 1 plus 1 into f dash of 1. सो अल्टीमेटली जब हम देखें तो एफ ऑफ 1 एंड एफ डैश ऑफ 1 की ज़रूरत है हमें, हाँ कि ना, करेक्ट। अभी इन दोनों को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन में 1 पुट कर एफ ऑफ 1 का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, 3/8 आते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ 1/x का वैल्यू सेम आएगा, इसलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली एक्स में 1 ही बिठाना है। अगर कुछ और बिठाना होता तो वी कुड हैव ट्राइड सम डिफरेंट मेथड, नॉर्मल फंक्शनल इक्वेशन जैसे सॉल्व कर लेते, बट इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा डिफ्रेंशिएट ही करना है। डिफ्रेंशिएट करके अल्टीमेटली यहाँ पे जो आएगा दैट इज बेसिकली 1/2 प्लस 3/8 करके डायरेक्ट वैल्यू 7/8 आ जाएगा, नॉट नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, simple use of intelligent logic, nothing more. The number of divisors of 3 numbers का number of divisors निकाल के बोल रहे हैं उन तीनों के बीच में रिलेशन, easy question। मैंने ये नंबर थ्योरी के एक लेक्चर में करवाया भी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, व्हेन यू कैन एक्चुअली प्राइम फैक्टराइज इट इन दिस फॉर्म वेयर p1 p2 एंड p3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। सो नथिंग, q1 नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है इसका एवरीवन, q1 plus 1 into q2 plus 1 into q3 plus 1। सो बेसिकली तीनों का अलग अलग से निकालो एंड आंसर कम्स आउट नंबर 12। नाउ इफ फॉर ऑल x, y द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x plus f of y plus f of x dot f of y equals 1 and f of x greater than 0, then इसको मैं क्या करूँगा, हमें बोलना है कि f of x कैसा फंक्शन है, यही हमें बेसिकली बोलना है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूँ, इधर कर दूंगा आपका +1 एंड इधर कर देता हूँ +1। इधर क्या होगा, +1 अगर करूँगा तो ये आ जाते हैं फैक्टराइजेबल टर्म एंड ये आ जाते हैं 2। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, f of x इज अ फंक्शन एंड f of y इज ऑल्सो फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ f of x इटसेल्फ, बट बस x की जगह पे y बिठाया दिया गया है। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है, f of x जो है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, x की जगह पे कुछ बिठाओ तो जस्ट वैल्यू चेंज होगा। सो इफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकलेगा अपना, 0 निकलेगा, विच इज ऑप्शन बी। थर्टीन का क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, तुम हॉस्पिटल लगा कर भी कर सकते हो या फिर तुम एक्सपेंड करके भी पूरे को कर सकते हो। सो नॉट अ वेरी बिग इशू, करके देखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, कमेंट करना अगर पॉसिबल हो तो। 14 ऑल्सो इजी क्वेश्चन, इंटीग्रल दिया गया, डिस्कंटिन्यूटी पार्ट्स निकालने, सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगाना है, नथिंग एल्स। ओके, going on to 15. The equation of the tangent to the curve y is equals to e to the power -x at the point when the curve cuts the line x equals 1. Okay. So basically इसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है टू कर्व where it cuts x equals to 1. At x equals to 1 we first need to find out what is the value of y, जो कि हमारा मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। सो 1, 1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर फाइंडिंग आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लो मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। मॉड्यूलस फंक्शन है, जब भी मॉड्यूलस रहे या सिग्नम फंक्शन रहे, कुछ नहीं करना है, डिवाइड द फंक्शन इनटू वेरियस केसेस। x ग्रेटर देन 0 में मॉड x पॉजिटिव खुलेगा, x लेस देन 0 में मॉड x नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो बेसिकली y डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली दो अलग अलग केसेस में डिवाइड कर देंगे।
अभी क्योंकि हमारे पास जो x बोला गया x इक्वल्स टू 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, सो बेसिकली हम लोग वही फंक्शन लेंगे which is possible for y dash when my x is greater than 0, so which is basically minus of e to the power minus x. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास m निकल गया था, तुम्हें x1 पता है, तुम्हें y1 पता है, जस्ट पुट इट, इजी क्वेश्चन, नथिंग वेरी टफ. A balloon is pumped at the rate of a centimeter cube per minute. The rate of increase of surface area when the radius is b centimeter is. बलून को हम लोग यहाँ पे स्फीयर ले रहे हैं, एन एब्सोल्यूट स्फीयर, कोई हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट वी विल बी नीडिंग इंटीग्रेशन एंड वी आर एंड बीइंग आस्क्ड दैट. यहाँ पे सिंपल यूज ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया एंड डिफरेंशिएशन का यूज है. सो या तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, वॉल्यूम पता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, वहाँ से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं, a/4 पाई आर स्क्वायर. अभी टी एस से क्या है स्फीयर का याद करो, इट्स 4 पाई आर स्क्वायर. इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे dr/dt टर्म आएगा, जस्ट सब्सटीट्यूट बाई dr/dt फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन एंड डायरेक्टली आंसर रहेगा, नथिंग एल्स. 17 if x be a number which exceeds its square by the greatest possible quantity then x is equal to. इसको दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं, एक है सिंपल डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमम लगा के, दूसरा है सिंपल हिट एंड ट्राई ऑप्शंस देख के. मैंने एग्जाम में भी हिट एंड ट्राई से किया था, हिट एंड ट्राई से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है बट आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा, तो ट्राई करने इसे, डोंट कमेंट, ईजी सा क्वेश्चन है. Let g of x equals f of x minus f of x square plus f of x cube for all value of x. Now this is a good question and this is a homework. इसको अगर चाहते हो तो कमेंट करना, अगर वरना पूछना, मैं कल सुबह को बता दूंगी या फिर आज रात को. अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी है, छोटा सा ट्रिक चाहिए बस, नथिंग एल्स. नंबर 19. Now my f of x क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया गया है. We are given various differentiables at f of 2 like f of 2, f dash of 2, f double dash of 2, f triple dash of 2 and f fourth dash of 2 दिया गया है. हमें निकालने बोला गया f double dash of 1. ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ऑलवेज यूज टेलर एक्सपेंशन, ऑलवेज यूज टेलर एक्सपेंशन. क्वेश्चन में कुछ रहेगा ही नहीं, क्वेश्चन एकदम हाई लेवल से नॉर्मल लेवल, बेसिक लेवल तक आ जाएगा, बस टेलर एक्सपेंशन को लगा दो, तुम डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ को, टेलर एक्सपेंशन लगा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, कर लेना. टेलर एक्सपेंशन लगाओगे तो अल्टीमेटली आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, विच इज ऑप्शन 26. देख लेना. सो क्वेश्चन नंबर 20, f belongs from real to real and g belongs from real to real continuous functions. इंटीग्रल प्रॉपर्टी पीरियडिक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, जस्ट शो इट टू बी पीरियडिक. 0 से π/2 लिमिट को ले लो, -π/2 से π/2 है, इजी सा क्वेश्चन है, वेरी बेसिक जेईई मेन लेवल क्वेश्चन, उतना कुछ नहीं है इसमें. और 21 इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन, बस मैंने दिखा दिए हैं. अभी हम सबको पता है एफ ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, ए एंड बी आर दी अपर एंड लोअर लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन और द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रेस्पेक्टिवली. सो मैं एक्स के जगह पर क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, सो एफ ऑफ 5 + 2 - x विच इज एफ ऑफ 7 - x. अभी मैं इसका पुट करूँ, मेरे पास आई तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर मेरा सेम ही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है. आई ऐड बोथ ऑफ देम 2i. You all know the property of adding up integrals to make it easier. Definite integration में possible है, indefinite में possible नहीं है. So integral 2 to 5 1, basically यहाँ पे I comes out to be 3/2, easy. Number the area enclosed by the two curves का एरिया वेरी वेरी सिंपल, एक से दूसरे को माइनस करो, दोनों को इक्वेट करके लिमिट्स निकालो, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है. सॉल्व करके मैंने दे दिया है, देख लेना पॉज करके वीडियो को. नाउ गोइंग अप टू बैक, मुझे थोड़ा बोर लग रहा था तो इसलिए मैंने पीछे से किया. आई हैव स्किप्ड सम क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, सॉल्व करना उसे इजी से, आई मीन स्किप किया मैंने, उतना टफ वाला तो स्किप नहीं किया. ओके, सो 50 द वैल्यू ऑफ, ये जो मॉड्यूलस देगा इसके वैल्यू निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लगने करो, 2 से 3 मिनट लगने तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें 2 मार्क्स मिल तो जाएगा ना. सो यू कैन डायरेक्टली डू इट. इसका नेक्स्ट वाला सेम थिंग, इंटीग्रल को सॉल्व करना, इंटीग्रल देख के घबराना मत. यू कैन डू समथिंग विच इज़ बेसिकली, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में. जो इंटीग्रल दिया गया है वो है इज बेसिकली ऑन अ मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स. तुम क्या करोगे,
दो चीज़ कर सकते हो, एक है कि पूरे मैट्रिक्स को अलग से सॉल्व कर लिया, उसके ऊपर इंटीग्रल बिठा दिया, वरना क्या कर सकते हो, वी ऑल नो इंटीग्रेशन अंडर मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स का एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर दो, फिर मैट्रिक्स को सॉल्व करो, थिंग रिमेन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 48 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 बड़ा सा एक्सपेंशन है, मल्टीनोमियल का बेसिक यूजेज है, नथिंग एल्स। 47 फिर से सिखाया था फर्मर्स थ्योरम के एक्सपेंशन, फर्मर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन, सुपर इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं चाहिए बस हम लोग को एक्सप्रेस करना है। सो बेसिकली हम लोग को पूछा क्या गया, रिमाइंडर 1 2 टू द पावर 2003 इज डिवाइडेड बाय 17, मॉड्यूलस निकालो, आई मीन मॉड का यूज करो, वी ऑल नो टू द पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, इसमें 17 इज प्राइम एंड अकॉर्डिंग टू फर्मर थ्योरम दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज। 2003 को हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे 125, रिमाइंडर रहेगा 3, सो बेसिकली अल्टीमेटली हमारे पास क्या रिमाइंडर रहता है 2 क्यूब विच इज 8। Cool. 46. A 5-digit number is found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. The probability that the number is divided by 6. Good question. इसको तुम लोग कमेंट करना. Easy use of permutation है. थोड़ा बहुत बस cases पढ़ेंगे. Nothing else. Other than that, number 45. Two dices are thrown. Then the probability that the sum of the numbers coming up on them is 9. When it is known that the number is 5, then second dice पे number क्या होगा? सो बेसिकली हम लोग के पास समेशन दिया गया है एंड वी हैव टू नंबर्स और प्रोबेबली टू डाइसेस जिनका टॉप का समेशन है 9 इज फिक्स्ड एंड ये भी हम लोग के पास फिक्स्ड है कि उसमें से एक डाई का जो नंबर निकलेगा दैट हैज़ टू बी 5, सो नथिंग एल्स लेफ्ट। बहुत ईजी सा बन गया क्वेश्चन। सो ऑप्शन हम लोग के पास क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डाई में सो ऑब्वियसली 5 के साथ 4 ही ऐड करेंगे तभी हम लोग को 9 मिलेगा। पुट 9 एक ही नंबर पॉसिबल है सो 1/6। 44 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इन वेक्टर फॉर्म, सबको पता है फॉर्मूला, यूज इट, मैंने नहीं किया है। नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर, अगेन वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली अभी मैं ए को क्या एक्सप्रेस कर सकता हूँ आई प्लस जे, बी को क्या एक्सप्रेस करता हूँ जे प्लस के, दोनों का परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा ए क्रॉस बी के जो डायरेक्शन में होगा। सो नाउ अभी मैं ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में जो नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूँ उसके दो वैल्यूज होंगे, एक होंगे माइनस के एंड दूसरा होगा ओनली के। सो बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट शुड आई से वेक्टर्स पॉसिबल, डायरेक्ट भी कर सकते हो बस याद रखना है। द इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन मिरर, अगेन फार्मूला बेस्ड, प्योर जेई बेसिक लेवल सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। द 41 लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड्स, मैंने बस गाइड कर दिया है। पी को हम लोग पकड़ सकते हैं बाई पैरामीटर इक्वेशंस वेयर टी1 इज अ पैरामीटर, सो 81 स्क्वायर एंड 281, एंड क्यू को पकड़ सकते हैं 82 स्क्वायर एंड 282। सो सबटेंड 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं हम लोग इसको वेक्ट्रिकली कर लेते हैं, सो डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा। यहाँ से हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करोगे सो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करने के बाद अल्टीमेटली विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ माई पैरामीटर्स एस्टिमेटेड इक्वल्स -4, मिड पॉइंट सबको पता है p+q/2, सो पी एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस q के एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p का y कोऑर्डिनेट एंड q का y कोऑर्डिनेट बाई 2 निकल जाएगा, नथिंग टफ। कॉर्ड है एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्ड है सर्कल पे सबटेंड एन एंगल एट द मेजर सेगमेंट। गुड क्वेश्चन, कमेंट कर सकते हो इफ़ यू वांट, हो ही जाएगा 99% से हो जाना चाहिए, इजी से है। 39 इज दिस क्वेश्चन, लूकस का क्वेश्चन आई हैड डन इन वन ऑफ माई पहले पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में, मैंने उसको पॉलिनोमियल के अप्रोच से सिखाया था कैसे कर सकते हैं हम लोग, सो देख लेना। 38 37 इजी क्वेश्चन, बस वैसे ही वो नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड वही वाला क्वेश्चन है। सो 36 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए तो हो ही जाएगा, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। सो हमारे पास 36 में क्या है, बेसिकली वी आर गिवन, आई एम गिवन एन इक्वेशन x + y + z + t = 29 when x greater than equal to 1, y greater than equal to 2, z greater than equal to 3 and t greater than equal to 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस। नाउ नंबर ऑफ सोल्यूशंस, नॉन जीरो सोल्यूशंस का हम लोग के पास क्या होता है फॉर्मूला, n-1 सी r-1, और जब भी वो इंक्लूडिंग जीरो सोल्यूशन होता है n + r-1 सी r-1।
ये तो सबको पता होना चाहिए, पीएनसी का है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर नहीं पता है, रेफर टू सेंगेज। सेंगेज में ये काफ़ी अच्छे से, सेंगेज का जो जे एडवांस कैलकुलस का जो बुक है उसमें काफ़ी अच्छे से ये दिया गया है, नॉट कैलकुलस सॉरी, अलजेब्रा का जो बुक है उसमें काफ़ी अच्छे से ये चीज़ दिया गया है, लाइक कंप्लीट सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, दो कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज आर गिवन ओनली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। अलग अलग यूजेस के ये वाला क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी दिया है। सो हमारे पास नॉर्मली क्या दिया रहता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। अभी यहाँ पे क्योंकि 1 2 1 3 दिया गया है टू मेक द प्रॉब्लम लिटिल कॉम्प्लेक्स, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने x माइनस वन को t1 ले लिया और x को हम लोग को पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, सो t1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, होगा। सिमिलरली t2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, सो y माइनस 2 को मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ t2 से। सिमिलरली z माइनस 3 को रिप्लेस कर देता हूँ t3 से, एंड t इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करता हूँ, -1 -2 और -3 दोनों साइड से माइनस कर देता हूँ। कूल। सो ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है ना, t1 प्लस टी टू प्लस t3 प्लस t इक्वल्स 23, ये जो इक्वेशन आएगा ये सेटिस्फाई कर रहा है आवर फार्मूला वेयर t1 t2 t3 एंड t ऑल नीड टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। क्या करता हूँ, सिंपल फार्मूला में पुट करूँगा मैं, क्या होगा, n प्लस आर माइनस वन सी, 4 माइनस 1 इज 3, सो 26c3 सॉल्व कर लो, 2600 आंसर आएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन कर लोगे, 2 3 प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन उतर जाएंगे। पीएनसी इज़ नॉट एट ऑल, एज आई हैव ऑलवेज सेड, पीएनसी इज़ नॉट एट ऑल अ टफ चैप्टर, बस थोड़ा आइडिया लगाते रहना है एंड थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते रहना है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव 35, the number of ways in which a mixed doubles game can be arranged for among 9 married couples if no husband and wife playing the same game. Okay, again good question, mixed doubles game है, so 2 men and 2 women. The main thing is one man and the other woman shouldn't be married. So पहले मैं क्या करता हूँ, 2 men को चूज कर लेता हूँ out of the 9 men available. Total I have 9 married couples, so 9 men and 9 women are available. मैं क्या करता हूँ, 9 men को चूज़ कर लेता हूँ, सो 9 से 2। अभी वुमेन को ऐसे चूज़ करेंगे ताकि उनके वाइफ्स ना आए, तो अभी उनके वाइफ्स 9 में से 2 होंगे, तो बेसिकली मैंने क्या किया, दोनों को हटा दिया, दैट इज़ द आइडिया, दोनों को हटा दिया, बाकी 7 बच रहे जिसमें से उन 2 चोजन मैन के एक भी वाइफ्स नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी बेसिकली चूज 7c2, दो लड़के को चूज करता हूँ फ्रॉम दी 7 लेफ्ट। 9c2 इंटू 7c2 1512 इसका आंसर आ जाएगा, विच इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शन, बट आंसर यही होगा, याद इसको देख लेना। 34 आर्ग्यूमेंट निकालना है, इजी। 33 भी नॉर्मल सब्सटीट्यूट करके निकालना है, वेरी कूल थिंग। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उतना सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इजी से है, बस आर्ग्यूमेंट कॉन्ज्यूगेट इन सब में घूमते रहते। 32 इज़ अ गुड क्वेश्चन, मैंने थोड़ा बहुत करके दिया आंसर, मॉड जेड इक्वल टू 1 को सब देख लेना। वी बेसिकली गिवन दिस इक्वेशन एंड हम लोग को मॉड जेड का वैल्यू निकालने बोला गया है, मैंने थोड़ा पॉलिनोमियल बेस से की है। तुम लोग अगर चाहो तो सिंपल जेड को एक्स प्लस आई वाई पुट करके भी कर सकते हो, बट दैट वुड बी ह्यूज, बहुत बड़ा होगा, 5 से 6 मिनट चला जाएगा, सो आई वोंट बी रिकमेंडिंग दैट। अगर इससे नहीं होता है तो यू कैन आइदर कमेंट और करके देख लेना, अगर प्रैक्टिस कर लेना अपने नॉर्मल मेथड से। पहले अगर करना है तो नॉर्मल मेथड से करना, देन गो फॉर सम ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है। 31, एक हम लोग को क्या दिया गया है, एक इनइक्वालिटी दिया गया है, बेसिकली मॉड जेड का हम लोग को इनइक्वालिटी निकालना है, सिंपल। मॉड जेड को जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मॉड जेड इक्वल्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रॉपर्टी यूज़ करो इनइक्वालिटी को, जैसे सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को, ऑल ऑफ यू मस्ट नो इट, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, कुछ नहीं है और। 30 मैट्रिक्स क्वेश्चन, नथिंग सो टफ, सिंपल एफ ऑफ एक्स निकालना बोला है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर इजी, क्वेश्चन नंबर 24 29 मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर को मैं अटैच कर दूंगा, सो देख लेना, इजी सा क्वेश्चन है, नथिंग वेरी टफ। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट, लेंदी था बट एंड अ लिटिल कैलकुलेटिव, बट ओवरऑल इजी था। आई वुडंट बी सेइंग कि वेरी आई एस आई बेस्ट, आई एस आई एंड जेई का, यू कुड से यू जी ए एंड जेई मेन्स का पेपर का मिलाना अच्छा सा पेपर है,
गुड पेपर अगर कंसिडर करके दे सकते हो तो फुल मार्क्स कैन ऑल्सो भी अचीव्ड 2 आवर्स में 50 क्वेश्चंस। कुछ कुछ क्वेश्चन में टाइम लग सकते हैं, वैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा ट्रिक यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेस देन 1 मिनट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एंट्रेंस एग्जामिनेशन. Hoping to see you at my college soon. Goodbye.